Maxillary sinus is the largest air containing space that occupies the maxillary bone on both sides, and it is the first paranasal sinus to develop. Embryological development of maxillary sinus begins in third month of intrauterine life by pouching of ethmoid infundibulum. अब इसमें एक न्यूमेटाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है. न्यूमेटाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एयर कैविटी इन बोन. प्राइमरी न्यूमेटाइजेशन जो है उससे इनिशियल डेवलपमेंट होती है मैक्सिलरी साइनस की, जिसमें जो है वो इट इन्वेजिनेट्स इनटू द कार्टिलेजिनस नेजल कैप्सूल. और जो सेकेंडरी इन्वेजिनेशन है दैट अकर्स इन फिफ्थ मंथ ऑफ इंट्रायूट्रन लाइफ, और उसमें क्या होता है कि इट एयर कैविटी pneumatizes into the maxillary bone. After birth, maxillary sinus pneumatizes into the alveolar process of maxilla interiorly and inferiorly from base of skull. And as the teeth erupts, dentition develops and teeth erupts, it also pneumatizes in the space which was previously occupied by the teeth, and it is now vacated as the teeth erupts. Maxillary sinus expansion is stopped after eruption of teeth. एक दफ़ा maxillary teeth erupt कर जाएंगे, maxillary sinus pneumatize करना बंद हो जाएगा. लेकिन अगर हम posterior teeth की extraction करते हैं तो वहाँ पे maxilla में space create हो जाती है, उस space में भी maxillary sinus pneumatize कर सकता है. And maxillary sinus जैसे edentulous patient है उसमें teeth नहीं होंगे, maxilla में space ज़्यादा होगी, तो maxillary sinus जो है वो edentulous patients में ज़्यादा large होगा as compared to dentulous patients. And maxillary sinus is also called antrum or antrum of Highmore. Other names of maxillary sinus. As far as anatomy of maxillary sinus is concerned, it is a four-sided pyramidal shaped air cavity. Its base or medial wall is lateral wall of nose. Its the apex of pyramid lies on the zygomatic process of maxilla as shown in the figure. Roof of sinus is floor of orbit, and floor of sinus is lateral hard palate and alveolar process of maxilla. Its interior surface is facial surface of maxilla, and its posterior wall extends the length of maxilla and dips into maxillary tuberosity. Its posterior wall separates maxillary sinus from infratemporal and pterygopalatine fossa. Dimensions of maxillary sinus: anteroposteriorly it is 34 mm, its height is 33 mm, its width is 23 mm, and its volume is 15 to 20 ml. Maxillary sinus opening, which is also called maxillary ostium, opens into the middle meatus of nose. This is a MCQ point, and opening is present on the inferior side, ठीक है, 2/3 from the distance from the base, and mucous membrane of maxillary sinus is lined with cilia, due to which mucus moves, and its opening is present inferiorly. तो gravity की वजह से जो mucus है वो इस opening के through drain करता है, क्योंकि ये inferiorly present है. Maxillary sinus lining is important for MCQs. It is lined by mucus secreting pseudostratified ciliated columnar epithelium, and beating of cilia within the sinus beating of cilia moves the mucus which is produced within the sinus and any foreign material in the nasal cavity, and cilia beat at the rate of 1000 strokes per minute and can move mucus up to a distance of 6 mm per minute. This is an MCQ, 1000 strokes per minute. Maxillary sinus functions. It humidifies and warms the inspired air and also causes filtration of the inspired air. It assists in regulating the intranasal pressure. It imparts resonance to the voice. It causes lightening of the skull and maintains head balance, and it also absorbs shock to the head. क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ साइनस, जैसे कि एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन आती है, तो हम इंस्पेक्शन करेंगे मिडल थर्ड ऑफ फेस की. वहाँ पे कोई एसिमेट्री, कोई डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग, एरिदीमा, काइमोसिस कुछ इस टाइप का तो नहीं है. उसके बाद हम एक्स्ट्रा ओरल पैल्पेशन करते हैं. एक्स्ट्रा ओरल पैल्पेशन हम फेशियल वॉल ऑफ साइनस की करेंगे जो प्री मोलर एरिया से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है. वहाँ पे बोन थिनेस्ट होती है साइनस की, तो वहाँ पे हम पैल्पेट करके देखेंगे. उसके बाद आती है इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन. इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन में हम परकशन टेस्ट करेंगे ताकि हम मोलर्स और प्री मोलर रीजन में हमने टेंडरनेस चेक करनी है और पैरेस्थीसिया चेक करना है. उसके बाद हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं. ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट एक डार्क रूम में करते हैं और एक लाइट माउथ में इंसर्ट करते हैं विद लिप्स क्लोज्ड. अगर तो ट्रांस इल्यूमिनेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि साइनस नॉर्मल है, उसमें एयर ही प्रेजेंट है. और अगर ट्रांस इल्यूमिनेशन नहीं है, फेलियर ऑफ ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, उसका ये मतलब है कि साइनस में कोई फ्लूइड, कोई पस, कोई सॉलिड लीजन या फिर कोई म्यूकोजल थिकनिंग वगैरह हुई हुई है.
रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्सिलरी साइनस एग्जामिनेशन का। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑरल रेडियोग्राफ्स करा सकते हैं हम, ओपीजी, वाटर्स व्यू जिसको ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू भी कहते हैं, या फिर सबमेंटिक्स व्यू, और इंट्रा ऑरली हम पेरी एपिकल ओक्लूजल या लैटरल ओक्लूजल करा सकते हैं। और इसके अलावा हम एमआरआई, सीटी स्कैन और पीए व्यूज़ करा सकते हैं। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो अगर नॉर्मल मैक्सिलरी साइनस का रेडियोग्राफ लेंगे तो वो रेडियोल्यूसेंट कैविटी होगी, वेल डिफाइंड डेंस कॉर्टिकेटेड रेडियो पेक उसके मार्जिन्स होंगे, और एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो रेडियोग्राफ में विजिबल नहीं होती। अगर ऐसा केस है कि रेडियोग्राफ पे मैक्सिलरी साइनस कम्प्लीटली ओपेक है तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? कोई नियोप्लास्टिक लीजन हो सकती है, म्यूकोजल हाइपरट्रॉफी हो सकती है, या फिर ब्लड और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो सकती है। और अगर कॉर्टिकल आउटलाइनिंग डिसरप्ट है साइनस की रेडियोग्राफ में तो वो ट्रॉमा, ट्यूमर, फिस्टुला फॉर्मेशन या किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से हो सकती है। अब साइनसाइटिस क्या होता है? साइनसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस, एंड पैरासाइनसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल पैरानेजल साइनसेस। अब बात करते हैं मैक्सिलरी साइनसाइटिस की। मैक्सिलरी साइनसाइटिस मतलब कि मैक्सिलरी साइनस की इन्फ्लेमेशन। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, एटियोलॉजी क्या हो सकती है? एलर्जिक रिएक्शंस, नियोप्लास्टिक डिजीज़ेज़, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव नेज़ल डिजीज़, कोई नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है और ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाती हैं जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों कर सकते हैं, और दोनों बैक्टीरियाज कर सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन आ जाती है, वायरल इन्फेक्शन आ जाती है। उसके अलावा ओडोंटोजेनिक कॉजेज़ में इसमें एक्यूट और क्रॉनिक पेरिएपिकल डिजीज़ेज़ आती हैं, पेरिडोंटल डिजीज़ेज़ आती हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है डेंटेशन का, और ओडोंटोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं जो एनारोबिक बैक्टीरियाज करते हैं। उसके अलावा मैक्सिलरी साइनसाइटिस के कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स की वजह से हो सकता है जो पोस्टीरियर मैक्सिला में करते हैं हम, लाइक रिमूवल ऑफ टीथ, एल्विलेक्टमी, ट्यूबरोसिटी रिडक्शन, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओरोएंट्रल फिस्टुला, साइनस लिफ्ट प्रोसीजर्स एंड इम्प्लांट प्लेसमेंट। एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के साइंस, एक्स्ट्रा ऑरल साइंस ये हैं कि चीक एरिया में एक तो टेंडरनेस होगी, और सिवियर इन्फेक्शन अगर होगी तो माइल्ड स्वेलिंग होगी चीक एरिया में। अगर इंट्रा ऑरली उसको देखो तो फिस्टुला प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। फाउल स्मेलिंग व्हेन ब्लोइंग द नोज, डिस्चार्ज ऑफ पस, अगर फिस्टुला प्रेजेंट है तो डिस्चार्ज होगी पस, और टेंडरनेस होगी ऑन प्रिकर्शन ऑफ मैक्सिलरी मोलर। जब मैक्सिलरी मोलर्स को प्रकस करके देखेंगे तो वो टेंडर होंगे। एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस के सिम्टम्स, अब पेशेंट में रैपिडली इंक्रीजिंग पेन इंटेंसिटी होती है, या डिस्कम्फर्ट उसका बहुत तेज़ी से ज़्यादा हो रहा होता है, और उसको ऐसे सेंस ऑफ प्रेशर और फुलनेस फील हो रही होती है। उसके अलावा उसकी हिस्ट्री में कोल्ड अटैक होता है 3 to 4 days बैक, ठीक है। उसके अलावा वो यही कहेगा कि डिस्कम्फर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके साथ फेशियल स्वेलिंग, एरिदीमा, मिलेस, फीवर हो सकता है, और ड्रेनेज ऑफ फाउल स्मेलिंग पस। हैवी फीलिंग होती है, और हैवी फीलिंग इन हेड, और कांस्टेंट थ्रॉबिंग पेन इन द एरिया ऑफ चीक ऑन ईदर साइड। उसके अलावा वो कहेगा कि जब मैं बेंड करता हूँ तो पेन ज़्यादा होती है, और पेन जो है वो इवनिंग और मॉर्निंग में ज़्यादा होती है। Maxillary teeth in relation with maxillary sinus on the affected side may be painful. सेम साइड के maxillary teeth painful हो सकते हैं. Unilateral foul nasal discharge on the same side, unilateral nasal obstruction on the same side, and pain in the teeth often precedes pain in cheek, which become more profuse on lowering down the head. And there can be occlusion of maxillary sinus opening, that is osseum of maxillary sinus. Radiographic features of acute maxillary sinusitis: air fluid level in sinus, complete or partial opacification of sinus, and thickened mucosa. अब ये चीज़ें क्यों होती हैं कि थिकनिंग ऑफ म्यूकोजा इन्फेक्शन की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इंक्रीज इन सिक्रीशंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस। जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से ऑस्टियम भी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, और जब म्यूकस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा साइनस में तो वो इन्फेक्ट होगा और वो पस फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगी। इन फीचर्स, इन चीज़ों की वजह से ये रेडियोग्राफिक फीचर्स विजिबल होते हैं। क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस इज़ प्रोलॉन्ग डेंटल इन्फेक्शन 10 days तक अगर रहे। अब वो क्यों हो सकता है? ट्रॉमा की वजह से हो सकता है जिसमें रूट और टीथ डिस्प्लेस्ड इनटू एंट्रम। उसके अलावा ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। एपिकल इन्फेक्शन ऑफ अपर पोस्टीरियर टीथ जो मैक्सिलरी साइनस में एक्सटेंड कर रहे हैं उनकी वजह से हो सकता है। अब इसमें ये होगा कि पेशेंट को रिपीटेड अटैक्स हुए होंगे ऑफ एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, और उस पेशेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग नेज़ल डिस्चार्ज होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस है।
अब अगर क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस की रेडियोलॉजिकल फीचर्स की तरफ आएँ तो उसमें टोटल या पार्शियली ओपेक हो सकती है साइनस कैविटी। उसके अलावा इसमें फ्लूइड लेवल दैट इज़ यूजुअली एट द बेस ऑफ वेंट्रल कैविटी गिव अ मेनिस्कस शेप। उसके अलावा राउंड डोम शेप्ड ओपेसिटी आ सकती है इन द केस ऑफ म्यूकोजल पॉलिप, और देयर इज़ इंक्रीज इन द बोनी एंट्रल वॉल्स ओकेजनली एंड टिपिकल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इफ़ द टीथ आर इन्वॉल्व। अगर उसमें मैक्सिलरी टूथ भी इन्वॉल्व हैं तो फिर क्या होता है कि रिजॉर्प्शन और रिमॉडलिंग की वजह से एक हैलो एंट्रल हैलो अपीयरेंस आ जाती है। उसके अलावा देयर इज़ एन एविडेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इफ़ एप्लीकेबल। अगर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो वो भी रेडियोग्राफ पे हमें पता चल जाएगा। Treatment of maxillary sinusitis. First of all, humidification of inspired air to loosen and remove the dried secretions from nasal passage and ostium of maxillary sinus. फिर हम उसको डीकंजेस्टेंट्स दे सकते हैं। डीकंजेस्टेंट सिस्टैमिक भी होते हैं, टॉपिकल भी होते हैं। सिस्टैमिक में सूडोएफिड्रीन आता है जिसका कमर्शियल नेम है सूडाफेड, एंड टॉपिकल में 2% एफिड्रीन और 0.25% फिनाइलेफ्रीन दे सकते हैं। हम पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं जो एनसेड्स या नारकोटिक्स दे सकते हैं। और इनिशियल थेरेपी ऑफ मैक्सिलरी साइनसाइटिस इज बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस के लिए अलग देते हैं, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस के लिए अलग देते हैं। जो हम नॉन ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस के लिए देते हैं वो एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन, सेफिरॉक्सिम हो सकती है। और जो ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन के लिए उसमें पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन या मेट्रोनिडाजोल आ जाती है। अगर पेशेंट एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा विद इन 3 डेज़ ऑफ ट्रीटमेंट तो फिर हम कल्चर सेंसिटिविटी से करवाते हैं और एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो है वो उसे प्रिस्क्राइब करेंगे उसके बाद। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस हम करते हैं जब एक्यूट साइनसाइटिस विद एनी कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक साइनसाइटिस विद मेडिकल मैनेजमेंट एंड फंगल साइनसाइटिस। अब सर्जरी में हमने करना क्या है कि नॉर्मल टिश्यूज़ को साइनस में से रिमूव करना है और साइनस के नॉर्मल ड्रेनेज को रिस्टोर करना है। अब इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है कैडवेल लूप प्रोसीजर। अब कैडवेल लूप प्रोसीजर क्या है, कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंटीरियर वॉल ऑफ साइनस को एक्सेस करना है हमने थ्रू केनाइन फॉसा, मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल के थ्रू हम साइनस तक जाएंगे। अब साइनस इज़ ओपनड, उसमें उसको उसकी ओपनिंग करके उसमें से अब नॉर्मल टिश्यूज़ और फॉरेन बॉडीज़ वगैरह रिमूव करेंगे। जो ऑस्टियोमीटल एरिया है उसको ओपन करेंगे, उसको एवेल्यूएट करेंगे, सब कुछ वहाँ से रिमूव करके उसको ओपन करेंगे ताकि ड्रेनेज प्रॉपर हो। और अगर नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक न्यू ड्रेनेज साइट हम क्रिएट कर सकते हैं इन द मोर डिपेंडेंट एरिया, उसको हम एंट्रोस्टमी कहते हैं, एंड दैट इज़ नियर द फ्लोर ऑफ साइनस। साइनस लिफ्ट प्रोसीजर्स हम इम्प्लांट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज़ अ प्री प्रोस्थेटिक सर्जिकल प्रोसीजर जो हम करते तब है जब हमने इम्प्लांट प्लेस करना है और बोन हाइट सफिशेंट नहीं है। तो बोन हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए हम साइनस लिफ्ट प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम बोन ग्राफ्ट प्लेस करते हैं विद इन द साइनस कैविटी बट आउटसाइड द साइनस मेम्ब्रेन। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, साइनस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो सकती है, इम्प्लांट कंटेमिनेटेड वो ग्राफ्ट और इम्प्लांट कंटेमिनेशन हो सकती है, फॉरेन बॉडी रिजेक्शन रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ऑस्टियम बाय ग्राफ्ट मटेरियल या फिर परफोरेटेड मेम्ब्रेन। अब अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, कंटेमिनेटेड और डिवाइटलाइज मटेरियल को वहाँ से रिमूव कर दें, एंटीबायोटिक थेरेपी और कैडवेल लूप प्रोसीजर से ट्रीट कर सकते हैं हम उसको। एंट्रल सूडोसिस्ट मतलब साइनस की सूडोसिस्ट कुछ होती हैं। एंट्रल सूडोसिस्ट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सीरम अंडर द साइनस म्यूकोसा नॉट साइनस म्यूकस। और ये होती किस वजह से है, मैक्सिलरी साइनसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस की वजह से होती है। कोई क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर साइनस म्यूकोसील की बात करें तो दैट इज़ अ सिस्टिक लीजन अंडर साइनस एपिथीलियम, और इसका कॉज सर्जरी भी हो सकता है, सर्जरी की वजह से हो सकती है। तो अगर ये सर्जरी की वजह से हो रही है तो इसको सर्जिकल सीलिएटेड सिस्ट या पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सिलरी सिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद रिटेंशन सिस्ट है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ डक्ट्स ऑफ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स ऑफ साइनस। डक्ट ब्लॉकेज हो जाए अगर साइनस के ग्लैंड्स की, उसकी वजह से हो सकती है। और एंड ऑल दीज लीजन्स ऑन रेडियोग्राफ अपीयर एज राउंड फेंट ओपेक opacity within the sinus. Now, oroentral communication. Oroentral communication is an unnatural opening or communication between oral cavity and maxillary sinus, and after 72 hours, it is converted into oroentral fistula. This is a viva point that 72 hours के बाद वो fistula में convert हो जाती है oroentral communication. Oroentral fistula is an epithelialized, pathological, unnatural communication between oral cavity and maxillary sinus. Difference इसका यही है कि जो fistula है वो epithelialized होता है, वो epithelial lined होता है।
Predisposing factors for oroantral fistula is removal of maxillary posterior teeth when there is little or no bone between the roots of posterior teeth and sinus due to sinus pneumatization. Widely divergent bulbous roots of the teeth, elongated roots of the teeth, hypercementosis of roots of the teeth, periodontal disease, any faulty extraction technique, and pathological lesions like granuloma, cysts, or any neoplasm. Now, what are causes of oroantral communication? Extraction of teeth by periapical lesions of the maxillary teeth that can perforate the floor of sinus, perforation of the floor of sinus or sinus membrane with careless use of instruments, forcing a tooth or a tooth root into the sinus during extraction, extensive trauma to face, surgery of maxillary sinus like removing any large cystic lesion उसकी वजह से हो सकता है, chronic infection of sinusitis osteomyelitis की वजह से हो सकता है, कोई गमा फॉर्मेशन थी उसकी वजह से हो सकता है, infected implants की वजह से हो सकता है, या फिर malignant diseases such as malignant granuloma. These are the causes या etiology of oroantral communication. Prevention of oroantral communication formation, conducting a thorough preoperative radiographic examination for evaluation of the roots of the teeth, especially in the case of maxillary posterior teeth. Use surgical extraction or section the root in the case of difficult extractions, and avoid using excessive apical pressure in the maxillary posterior teeth during extraction or any other procedure. ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन के साइंस और सिम्टम्स, अगर अर्ली स्टेजेस यानी फ्रेश ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन को देखा जाए तो उसको आपने ऐसे याद करना है, लाइक 5 ईज हैं उसमें. फर्स्ट वन इज़ एस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम माउथ इनटू नोज एट द साइड ऑफ एक्सट्रैक्शन, और ये तब होगा जब पेशेंट विल रिंस और गार्गल फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन. उसके बाद अगर रिंसिंग करेगा तो वो देयर विल बी एस्केप ऑफ फ्लूइड थ्रू नोज. अब एपिस्टेक्सिस, यूनिलैटरल एपिस्टेक्सिस ऑन द साइड ऑफ एक्सट्रैक्शन इज ड्यू टू द escape of blood from sinus into the nostrils, then escape of air from mouth into the nose on sucking, inhaling or drawing a cigarette, puffing the cheeks. So there will be inability to blow the cheeks, and there will be passage of air into the mouth on sucking. And enhanced air column, that is there will be change in the voice due to alteration in vocal resonance. And excruciating pain as the effect of LA will wear off. जब LA का effect जो है ख़त्म होना शुरू होगा तो पेशेंट को वहाँ पे पेन भी फील होना शुरू हो जाएगी. अब लेटर स्टेजेस में जब ओरोएंट्रल फिस्टुला में कम्युनिकेशन कन्वर्ट हो गई है, आपने कैसे याद रखना है उसके सिम्टम्स को, बाय रिमेंबरिंग 5 P's. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले पेन को अगर कंसिडर करें तो पेन पहले बहुत ज़्यादा थी, अब पेन कम हो जाएगी क्योंकि फिस्टुला इस्टेब्लिश हो गया और सारा जो फ्लूइड है वो स्केप हो जाएगा. अगर पेशेंट कहेगा कि व्हेन ऑन लोअरिंग डाउन द हेड देयर विल बी persistent purulent mucopurulent foul unilateral nasal discharge from the affected nostril, और पोस्ट नेजल ड्रिप होगी. पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं दैट इज़ ट्रिकलिंग ऑफ नेजल डिस्चार्ज फ्रॉम posterior nares into pharynx, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट टेस्ट होगा. फाउल म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज होगा, उसकी वजह से अनप्लेजेंट टेस्ट होगा. और उसके अलावा ये इसकी वजह से नॉक्टर्नल कफिंग, हॉर्सनेस और ईयर एक होगी. अब इसमें जो सिस्टेमिक सिम्टम्स आ सकते हैं वो फीवर, मिलेज, मॉर्निंग एनोरेक्सिया, फ्रंटल एंड प्राइटल हेडेक्स, एंड इन एक्सट्रीम केसेस एनोस्मिया हो सकता है. पॉपिंग आउट ऑफ एंट्रल पॉलिप, अब जो वहाँ पे फिस्टुला बन गया है, लॉन्ग स्टैंडिंग फिस्टुला इज इंक्लूडेड बाय एन एंट्रल पॉलिप, और वो कैसे विजिबल होगा, इट विल बी सीन एज अ ब्लूइश रेड लंप एक्सट्रूडिंग थ्रू द फिस्टुला. Now, how to diagnose oroantral communication? First of all, after extraction, examine the roots of the teeth. If there are any bone fragments attached to the roots of the teeth, then nose blow test. अब उसको क्या कहना है, उसके इंटीरियर नेयर्स को कंप्रेस करना है और उसे कहना है जेंटली ब्लो करें नोज को विद माउथ ओपन. अब आपने उस सॉकेट को ऑब्जर्व करना है, उसमें क्या क्या हो सकता है. विस्लिंग साउंड एज द एयर पासिस डाउन द ओपन पैसेज, एयर बबल्स, ब्लड या पस आ सकती है और उस सॉकेट में से. एंड अ विस्प ऑफ कॉटन वूल इज़ हेल्ड बिलो द सॉकेट, और वो उस पर आपको पता चलेगा कि सॉकेट में से एयर आ रही है या नहीं आ रही है. अगर एयर आ रही है तो इसका मतलब है ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन क्रिएट हो गई है. लेकिन कभी कभी ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन नहीं होती और फोर्सफुल ब्लोइंग की वजह से ओरोएंट्रल कम्युनिकेशन हो जाती है. इसलिए पेशेंट को कहना है कि वो आराम से थोड़ा सा जेंटली ब्लो करे, और कभी भी एक्सट्रैक्शन साइट को पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से एक्सप्लोर करके नहीं चेक करते कि कम्युनिकेशन है या नहीं, क्योंकि उसकी वजह से भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट भी वहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकता है. इसलिए
Management of oroantral communication in immediate management. Now, the treatment of the oroantral communication depends upon its size. If the communication is small, that is 2 mm or less than 2 mm, no surgical treatment is necessary. You only make sure कि वहाँ पे blood clot अच्छा बने सॉकेट में, और पेशेंट को साइनस और नेज़ल वो साइनस प्रिकॉशंस बता देते हैं, और फॉर 10 to 14 डेज़ के लिए वो फॉलो करे ताकि क्लॉट डिसलॉजमेंट ना हो. इफ़ द ओपनिंग इज़ मॉडरेट साइज्ड लाइक 2 to 4 mm, तो फिर भी सर्जिकल ट्रीटमेंट नेसेसरी नहीं है. उसमें हम क्या करते हैं, सॉकेट में जेलेटिन स्पंज प्लेस करके उसके ऊपर फिगर ऑफ 8 सूचर दे देते हैं, या फिर साइनस और उसके साथ साइनस प्रिकॉशंस तो बतानी है. उसके अलावा हम इस केस में एंटीबायोटिक्स और नेज़ल डिकंजेस्टेंट स्प्रेज जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स में मॉक्सिसिलिन, सेफेलेक्सिन, क्लिंडामाइसिन कोई भी. इफ़ द साइनस ओपनिंग इज़ लार्ज, अगर आप 7 mm से लार्जर है साइनस ओपनिंग, तो फिर हम उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं. अब साइनस प्रिकॉशंस क्या होती हैं? अवॉइड ब्लोइंग द नोज, अवॉइड स्नीजिंग वायलेंटली एंड ओपन माउथ वाइल स्नीजिंग, डू नॉट सक ऑन अ स्ट्रॉ एंड अवॉइड स्मोकिंग. इफ patient cannot stop smoking, then advise patient to take small puffs. डिलेड मैनेजमेंट ऑफ ओरोएंटल कम्युनिकेशन. अब फ्लैप सर्जरी करने से पहले दे साइनस शुड बी फ्री ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, बाय उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इरिगेट करके एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं. उसके बाद हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ आते हैं. हमारे पास 3 टाइप के प्रोसीजर्स हैं: बकल फ्लैप एडवांसमेंट, पैलेटल फ्लैप एडवांसमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ पैलेटल और फेशियल फ्लैप्स ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एलोप्लास्टिक मटीरियल. Buccal flap advancement procedure is the most commonly used technique. It involves elevating the buccal flap, releasing periosteum, and then extending the flap to cover the extraction site with sutures. बकल फ्लैप एडवांसमेंट प्रोसीजर हम तब करते हैं जब माइनर कम्युनिकेशन हो और बकल डिफेक्ट हो, और इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल टेक्निक है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन और डिस्कम्फर्ट भी इसमें कम होता है. लेकिन बकल फ्लैप एडवांसमेंट लार्ज कम्युनिकेशन के केसेस में या फिर रीसेंट फिस्टुला फॉर्मेशन में नहीं करते. Buccal flap advancement procedure के disadvantages are thin flap which can cause dehiscence, extent उसका limited होता है जिसकी वजह से vestibular depth भी loss हो सकती है, और scarring may cause impaired mobility. अब पैलेटल फ्लैप एडवांसमेंट प्रोसीजर है. अब इसमें हम क्या करते हैं कि पैलेट से फ्लैप रेज करते हैं. द ग्रेटर अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसीजर टू प्रिवेंट इंजरी टू पैलेटाइन वेसल्स एंड टू प्रिवेंट हेमरेज. अब इसमें क्या करते हैं कि फ्लैप इज़ रेज्ड अलॉन्ग विद द पेरियोस्टियम एंड इट मस्ट कंटेन ब्लड वेसल्स. अब जहाँ पे फ्लैप हमने रेज कर लिया, अब जहाँ पे हमने फ्लैप को फोल्ड करके एक्सट्रैक्शन सॉकेट के ऊपर लेकर आना है, वहाँ पे हम एक वी शेप्ड इंसिजन देते हैं ताकि फ्लैप इजीली फोल्ड हो जाए. अब इसमें क्या करते हैं, उसके बाद हम बकल जिंजिवा को अंडरमाइन करते हैं ताकि हम फ्लैप को बकल जिंजिवा के साथ सूचर कर सकें. अब फिर हम फ्लैप जो हमने रेज किया है और वी शेप्ड इंसिजन देने के बाद हम फ्लैप को पैलेटल फ्लैप को रोटेट करते हैं ओवर द एक्सट्रैक्शन सॉकेट, और फिर हम उसको बकल जिंजिवा के साथ सूचर कर देते हैं. और फिर जो डोनर साइट है वहाँ पे हम आइडोफोम गॉज को टाइटली पैक कर देते हैं. एक वजह उसकी ये कि हीलिंग हो जाए उस साइड पे, दूसरी वजह ये कि इट प्रिवेंट्स रिटर्निंग ऑफ द फ्लैप टू इट्स नेचुरल लोकेशन एंड ऑल्सो रिलीव्स टेंशन ऑन द सूचर साइट. अब पैलेटल एडवांसमेंट फ्लैप यूज़ करने के एडवांटेजेस ये हैं: एक तो मोर टिश्यू अटैचमेंट, दूसरा फर्म एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन, तीसरी बात ये कि इट कैन बी यूज टू कवर लार्ज डिफेक्ट्स, इट कैन प्रिजर्व द बकल वेस्टिबुलर डेप्थ, और ब्लड सप्लाई भी इसमें होती है फ्रॉम पैलेटल वेसल्स, एंड केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ ऑफ पैलेट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ द टिश्यूज़ ओवर द क्रेस्टल रिज. Disadvantages इसके ये हैं: denuded palatal surface, greater post-operative pain, it is a more complicated technique, there is roughness at the donor site, there can be flap necrosis and interference with wearing of partial denture for covering the hard palate. अब जो membrane assisted closure होता है, इसमें क्या करते हैं, दोनों पैलेटल और फेशियल फ्लैप्स रेज करते हैं और डिफेक्ट को एलोप्लास्टिक मटेरियल से कवर करके उसके ऊपर फ्लैप्स सूचर कर देते हैं, और साइनस और बोन वहाँ पे साइनस लाइनिंग और बोन जो है वहाँ पे उसकी हीलिंग हो जाती है सुपीरियर टू द एलोप्लास्टिक मटेरियल. और जो इसमें मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो गोल्ड फॉयल, टाइटेनियम फॉयल या कोलेजन मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं.